Hi friends, my name is Amit Kumar and welcome to Technical Education classes. Today we will study measurement system characteristics. For regular updates, please subscribe our YouTube channel. Thank you. So today's topic is measurement system characteristics. What is measurement system characteristics? Measurement system characteristics can be divided into two distinct categories. First one is static characteristics and second one is dynamic characteristics. So, what is static characteristics? We will study first static characteristics, then dynamic characteristics. So, what is static characteristics? Some applications involve the measurement of the quantities that are either constant यानी वो कांस्टेंट रहेगा और वेरी स्लोली विथ टाइम या तो फिर बहुत ही स्लोली चेंज होगा उसमें टाइम के साथ. ठीक है. अंडर दिस सर्कमटेंसेस यानी ऐसे कंडीशंस में इट इज पॉसिबल टू डिफाइन a set of criteria that give a meaningful description of quality of measurement without interfering with dynamic descriptions that involves the use of different quantities. These criteria are called static characteristics. Normally, static characteristics of measurement system are in general those that must be considered. उसको बहुत जरूरी है कि उसे तब कंसीडर करेंगे जब द सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अ कंडीशन नॉट वेरिंग विथ टाइम. यानी इसमें जो मेजरमेंट होगा उसमें कंडीशन ये रहेगी कि ये या तो समय के साथ वैरी नहीं करेगा या तो फिर अगर करेगा भी तो बहुत स्लोली, जैसा कि हम आप लोग को यहां पर बताए थे. ठीक है. नाउ व्हाट इज डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके. हाउएवर many measurements are concerned with rapidly varying quantities and therefore for such cases we must examine the dynamic relations which exist between the output and the input. स्टैटिक में क्या था कि या तो वो स्थिर रहेगा या फिर अगर वो चेंज भी कर रहा है तो बहुत स्लो कर रहा है. लेकिन डायनेमिक के केस में ऐसा नहीं है, ठीक उसके अपोजिट है. इसमें होगा कि उसमें ये क्या हो रहा है, रैपिडली वैरी कर रहा है. ठीक है. क्वांटिटीज एंड देयरफॉर सच केसेस वी मस्ट एग्जामिन द डायनेमिक रिलेशनशिप. ठीक है. तो इसमें हम लोग एग्जामिन करेंगे कि इनपुट और आउटपुट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या निकल रहा है डायनेमिक. ठीक है. और इसमें कंडीशन क्या है कि ये रैपिडली वेरी करेगा. ठीक है. डायनेमिक में. स्टैटिक में क्या था कि वो या तो स्थिर रहेगा या तो फिर अगर वेरी भी करेगा तो बहुत स्लो करेगा. ठीक है. दिस इज नॉर्मली डन with the help of different equations. Performance criteria based upon dynamic relation constitute the dynamic characteristics. और इस तरह के जो परफॉर्मेंस आपको मिलेंगे वो आपको डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टैब्लिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. अब यहां हम लोग स्टडी करेंगे कि what are the static characteristics of the instrument. This is very important question for your semester examination and also for internal. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं. सो इसको केयरफुली स्टडी कर लेंगे. ये आपको शॉर्ट में भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा. ठीक है. सो व्हाट इज static characteristics. Static characteristics are those that must be considered when the system or the instrument is used to measure a condition
विच इज नॉट वेरिंग विथ टाइम। यानी इसमें जो मेजरमेंट होगा उसमें कंडीशन क्या रहेगा कि पैरामीटर जो है वो चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ। दीज आर एज फॉलोज। तो इसमें आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं, व्हाट आर द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो आपके ये 18 इस तरह के कंडीशंस है, 18 स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन आता है आपका एक्यूरेसी, नंबर 2 प्रिसीजन, नंबर 3 रिप्रोड्यूसिबिलिटी, नंबर 4 रिपीटेबिलिटी, नंबर 5 सेंसिटिविटी, नंबर 6 ड्रिफ्ट, 7 रिजोल्यूशन, नंबर 8 डेड टाइम, नंबर 9 डेड जोन, नंबर 10 hysteresis, 11th threshold, number 12 static error, number 13 linearity, next stability, and next is range or span. 16 is tolerance, true value, and calibration. Now we will study about accuracy. What is accuracy? Accuracy is defined as the degree of closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. ठीक है, it indicate the nearness to the actual or true value of the quantity. Okay. Second is precision. Precision is a measure of the degree to which successive measurements differ from each other. It is measure of reproducibility of measurements. That is, given a fixed value of quantity, precision indicates how closely the reading agree with each other. This is called precision. Next is reproducibility. It is defined as the degree of closeness by which a given value can be repeatedly measured. यानी जो इसमें डिग्री ऑफ क्लोजनेस रहेगा वो विच गिव वैल्यू कैन बी रिपीटेडली मेजर, वो रिपीटेड होगा. दिस इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. इट मे बी specified in terms of a unit for given period of time. Number 4th is repeatability. It is the closeness of agreement among a number of consecutive measurements of the output for the same value of input under the सेम ऑपरेटिंग कंडीशन. यानी ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है यहाँ पर? ऑपरेटिंग कंडीशन आपका सेम है और जो आपका इनपुट जो आप दे रहे हैं और जो आपका आउटपुट आ रहा है वो क्या हो रहा है? रिपीटेड हो रहा है. ठीक है, इसी को कहते हैं क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, एंड ऑल टुगेदर इट इज रिपीटेबिलिटी. ये रिपीट हो रहा है. जब भी हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उस कंडीशन में, उस ऑपरेटिंग कंडीशन में हमारा आउटपुट जो है वो रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी. आपकी सेंसिटिविटी किस तरह से है? It is the ratio of change in output of the instrument to the change in input. So, our sensitivity is change in output by change in input.
this one is very important for us. It is always asked in our semester examination, that is drift. So what is drift? Drift is defined as the gradual shift in indication over a time. Okay, gradual shift in indication over a time where the input variable does not change. आपका जो इनपुट वेरिएबल है वो यहाँ पर चेंज नहीं करेगा, लेकिन आउटपुट जो है वो ग्रेजुअल शिफ्ट करेगा, ठीक है, ओवर अ टाइम. इट मे बी काउज्ड बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर. इसका वजह क्या होगा? इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा. लाइक स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, इसका कारण स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, या इस तरह के कोई भी पैरामीटर्स इसमें हो सकते हैं जिसके वजह से इसमें ग्रेजुअली शिफ्ट होगा. वेयर द इनपुट वेरिएबल डज नॉट चेंज. हमारे जो इनपुट जाएगा उसमें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ग्रेजुअली शिफ्ट होगा. और उसका वजह क्या होगा? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं ड्रिफ्ट के लिए. इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है. वो क्या है? सबसे पहले है आपका जीरो ड्रिफ्ट, सेकंड स्पैन ड्रिफ्ट एंड जोन ड्रिफ्ट. So what is zero drift? It is the deviation of the output. Deviate क्या हो रहा है? Deviation output में हो रहा है. From its zero value. कहाँ से? इसके जीरो वैल्यू से. कब? When the variable to be measured is constant. जब आपका वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है. That is called zero drift. And what about span drift? Span drift क्या है? It is the change in indication. Change किस में हो रहा है? Indication में. Along with the upward direction. किस direction में? Upward direction. That is called span drift. And number third is zone shift. Zone drift. It is the drift that occurs over a portion of the span of the instrument. That is called zone drift. Now, next is resolution. It is the smallest change. क्या है ये? Smallest change है, सबसे छोटा change in the input to which the instrument can respond. स्मॉल से स्मॉलेस्ट इनपुट जिस पर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब कि वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ योर सिस्टम. नेक्स्ट इज डेड टाइम. इट इज द टाइम. क्या है ये? टाइम. It is the time required for instrument to respond to the change in input. For a certain range of input, the output value does not change. आप कुछ इनपुट दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ? For a certain range of input, the output value does not change. मतलब आप इनपुट दिए जा रहे हैं, लेकिन आपका आउटपुट में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है. सो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इनपुट, ठीक है. ये टाइम रिक्वायर्ड है. इट इज द टाइम रिक्वायर्ड जहां फॉर इंस्ट्रूमेंट जिसमें वो रिस्पॉन्ड करेगा, जब आप जो इनपुट दे रहे हैं वहां पर से वो रिस्पॉन्ड करेगा. उससे पहले क्या होगा? वो कोई आउटपुट नहीं देगा, यानी दैट इज डेड टाइम. नेक्स्ट इज डेड जोन. डेड जोन किसको बोलेंगे? ठीक है. इट इज द
largest range of value of measured variable to which instrument does not respond. आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस रेंज में क्या है ये, दैट रेंज इज डेड जोन. ठीक है. नेक्स्ट इज hysteresis. This is very very important, and it is also very important for electrical student also, क्योंकि वो लोग जब इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर BH कर्व उन लोग को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. उसके लिए हिस्टेरेसिस वहाँ भी वो लोग पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं. व्हाट इज हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस इज अ phenomenon which give different आउटपुट इफेक्ट वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग. ठीक है. जब लोड होगा और अनलोड होगा तो उसके क्या इफेक्ट होंगे. द डिफरेंस बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व है यहां पर, उसके बीच में जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज अपलोडिंग कर्व एंड द डाउनलोडिंग कर्व इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस. इसी को हिस्टेरेसिस कहेंगे, इन दोनों के डिफरेंसेस को. यहाँ देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट जो है ई पॉइंट, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेचुरेशन पॉइंट एंड दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिव सेचुरेशन पॉइंट. सेचुरेशन कहते हैं कि जहाँ पर से, जहाँ के बाद, जैसे कि कंटिन्यू आपको कुछ हम बता रहे हैं. ठीक है. एक सर्टेन रेंज के बाद आप कुछ समझ नहीं रहे हैं, यानी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, तो वहां पर वो क्या वैल्यू क्या हुआ, वो सेचुरेट कर गया, आप सेचुरेट कर गए. उसी तरह से नेगेटिव में ये यहाँ पर सेचुरेट कर रहा है, दैट इज नेगेटिव सेचुरेशन पॉइंट एंड दिस वन इज पॉजिटिव सेचुरेशन पॉइंट. ओके. एंड दिस इज अपलोडिंग. यू कैन सी बाय एरो मार्क्स एंड दिस इज downloading. So two curve here and this is axis. So here we can see that this is maximum input hysteresis. ये जो रेंज है आपका, ये मैक्सिमम इनपुट हिस्टेरेसिस रेंज है. ठीक है. और यहां पर आप देख सकते हैं ये रेंज जो है आपका यहां से लेकर के यहां, ये है आपका मैक्सिमम आउटपुट हिस्टेरेसिस. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम आउटपुट हिस्टेरेसिस, ये वाला पॉइंट. ठीक है. थोड़ा सा ये यहां से यहां. ठीक है. दिस इज कॉल्ड दिस पॉइंट C इज कॉल्ड रेसिडुअल. दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पॉजिटिव and here in this point G is corrosive force, that is positive also. ठीक है. नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड आप लोग EDC भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सब पॉइंट्स आपके काम में आएंगे. सो ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही केयरफुली याद रखने हैं थोड़े से. ठीक है. व्हाट इज थ्रेशोल्ड. इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट. यह ऐसा स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट है बिलो विच, इसके नीचे. ठीक है. नो आउटपुट बिलो विच, जिसके नीचे नो आउटपुट चेंज कैन बी डिटेक्टेड. अगर इस स्मॉलेस्ट इनपुट के नीचे कोई भी इनपुट है तो वो इसको डिटेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो वो पॉइंट जहां से ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है, वो हो गया क्या, थ्रेशोल्ड. इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट बिलो विच आउटपुट रेंज कैन आउटपुट चेंज कैन बी डिटेक्टेड. इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट इस तरह से जा रहा है. ठीक है. लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. लेकिन यहाँ के बाद वो
डिटेक्ट होना शुरू करेगा। तो ये जो पॉइंट है आपका जहाँ से ये डिटेक्ट हुआ ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। So next one is static error. What is static error? Static error is defined as the difference between measured value and the true value. ये measured value और true value का difference है, ठीक है, that is E equal to Vm by Vm minus Vt, where Vm is measured value and Vt is true value. Okay. Next one is linearity. Linearity is the measure of maximum deviation of any calibration point from a straight line. ठीक है, जैसा कि ये आपका जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें ये लाइन जो जा रहा है, ठीक है, दिस इज आइडियल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक आइडियल स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन कर्व, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन कर्व। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस स्ट्रेट लाइन से, इस पूरे स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेविएशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि डेविएशन यहाँ से यहाँ हुआ, ये सबसे मैक्सिमम डेविएशन हो रहा है, इसका ये यहाँ इसका रेंज यहाँ से यहाँ है, इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, सो इट इज मैक्सिमम डेविएशन। So with this figure we can understand linearity. So linearity is the measure of maximum deviation of any calibration point from a straight line. Next is stability. Okay, this is the ability of instrument to retain its performance throughout its specified storage life and operating life. This is called stability. मतलब ये अपने पूरे लाइफ में, पूरे ऑपरेटिंग पीरियड में ये आपको एक स्टेबल आउटपुट देगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। और नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज और स्पैन। ये बहुत ही आसान है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आपका डिफरेंस किसका निकालना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रीडिंग का, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, स्पैन भी कहते हैं, ठीक। Our next point is tolerance, very very important for all students. It is the maximum allowable error. क्या कह रहा है ये, मैक्सिमम allowable error, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना एरर को ये अलाउ करेगा, ठीक है, दैट जो इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ सर्टेन वैल्यू वाइल टेकिंग मेजरमेंट, ठीक है, जब हम लोग मेजर करेंगे तो सर्टेन वैल्यू को वो ये टॉलरेट करेगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। जैसे कि हम लोग टॉलरेंस बताते हैं किसी कंपोनेंट में, जैसे कि आपका एक रेसिस्टर हो गया, ठीक है, और इसमें आपको बताया गया कि इसके साथ 5% का जो है वो टॉलरेंस है, ठीक, इसकी वैल्यू अगर 100 ओम है, ठीक, तो इसके साथ 5% टॉलरेंस है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो 95 से 100
5 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसे हम लोग अलाउ करेंगे, ठीक है। सो दिस इज टॉलरेंस। नेक्स्ट वन इज ट्रू वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू इज द एररलेस वैल्यू, उसमें एरर नहीं होगा ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। Our next point is, and final point is calibration. It is the process of determination by measurement और comparison. ये जनरली एक कंपेरिजन है, ठीक है, विथ किसके किसके बीच में? विथ स्टैंडर्ड ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ each स्केल रीडिंग ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपका जो करेक्ट वैल्यू है उसका और आपका जो स्केल रीडिंग आ रहा है उसके बीच का जो ये कंपैरिजन है, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन बाय मेजरमेंट और कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड ऑफ करेक्ट वैल्यू ऑफ ईच स्केल रीडिंग ऑन measuring instrument. Okay, thank you for watching. So see you in next class.